Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and today I have brought a thing of beauty. I am taking some important extracts from this poem and these are meant for the students of class 12, CBSE and non-CBSE boards. The poem is written by John Keats. Let's go ahead with extract 1. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness but still will keep a bower quiet for us. तो अगर आपको ये चेक करना हो कि राइमिंग स्कीम क्या है तो ये एंडिंग साउंड देखनी है एवर नेवर, तो इसको ए रख लेते हैं, इसको भी ए रख लेते हैं, सेम साउंड है। कीप में चेंज हुई है बी, तो यहाँ सपोज करो आगे डीप आए तो वो बी आ जाएगा, तो इसकी ए बी बी राइम स्कीम हो जाएगी। आमतौर पे सभी स्टैंडर्ड्स में यही स्कीम मिलेगी आपको देखने में। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ और एन, आपको चेक करना है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए फिलोसोफर, साइंटिस्ट, पीस लविंग पोइट एंड हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन तो नहीं है, साइंटिस्ट भी नहीं है, तो द पोएम हैज बीन रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पीस लविंग पोइट, शांति चाहता है कभी। देन लेट्स see the analogy beauty and joy and bower. Beauty and joy correspond to each other, okay? Bower corresponds to shelter, so shelter will be provided here. Third question is statement. Two statements are given to you. A beautiful thing gives everlasting happiness. According to the poet, beauty fades quickly. आपको ये बताना है कि ए ऑप्शन सही है, बी है या सी या डी। ए में first is true but second is false, second true, first is false, both true और both false। आपको जो ऑप्शन सही लगे वो बताना है। तो a beautiful thing gives everlasting happiness, this is true, fades away quickly, ये गलत है, तो first A is correct answer। Reason behind it. In A Thing of Beauty by John Keats, the poet says that a beautiful thing gives everlasting joy. This is right. He doesn't say that beauty fades quickly. Instead, he emphasizes its lasting impact on the human mind. यहाँ पे ये तो बताते हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो जॉय देती है, जॉय फॉर एवर, gives everlasting joy, permanent joy to human beings. But he doesn't say that it fades away quickly. But he says physical beauty may die, may fade away quickly, but its everlasting impact always becomes the source of joy for every human being. Let's see the rhyming scheme of the extract. आपको चेकआउट करना है पहले राइमिंग स्कीम, ओके। ए बी बी, तो चार ऑप्शन दिए आपको, ए बी बी, ये है, ये गलत है, दिस इज आल्सो रॉन्ग एंड दिस इज आल्सो रॉन्ग। दो पोएम है, पहली माई मदर एट 66, उसमें रिवर्स है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, और कीपिंग क्वाइट में भी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो उसके लिए फर्स्ट 2 पॉइंट्स के लिए रिवर्स सही थी। फिगर ऑफ स्पीच अबावर क्वाइट फारस, मेटाफर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है। बावर समूह होता है छायादार वृक्षों का, क्वाइट फारस, अबावर क्वाइट फारस, शांत हम सब के लिए, हमें शांति भी देता है और राहत देता है। जब तपती दोपहरी होती है तो छायादार वृक्ष ही हमें राहत देते हैं। तो दिस इज ए मेटाफर, ये मेटाफर है। कैसे है? द ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स सी व्हाई इट्स ए मेटाफर। हियर bower literally means a pleasant shady place made of trees and leaves, but the poet is not talking about a real bower. He is comparing a thing of beauty to a peaceful shelter that gives rest and comfort to human mind. The poet is not talking about a bower, a group of shady trees. He is not talking about. Actually, he is comparing a bower to a thing of beauty that gives joy forever. So he has made a bower a thing of beauty. There is no comparison with the words like as or like. कोई यहाँ as या like नहीं है तो सिमली हो जाती, बट दिस इज ए मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ऑक्सीमोरन नहीं है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, ह्यूमन टर्म्स में किसी नॉन लिविंग बीइंग को देखते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन नहीं है। पहले आप ये चेक कर लेते, पता लग जाता आपको। ऑक्सीमोरन भी नहीं है, अपोजिट थॉट कोई इसमें नहीं है। व्हाट इज ऑक्सीमोरन?
Oxymoron is a figure of speech in which two opposite or contradictory words are placed together to create a new striking meaning. तो opposite वर्ड्स नहीं है जिनका मीनिंग अपोजिट हो, ऐसे वर्ड्स भी साइड बाय साइड नहीं रखे गए। जैसे डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस ऐसी जो बहरा कर दे। लिविंग डेड, मृतक ऐसा जो कि लिविंग दिखाई दे, मरने के बाद भी जीवित हो जो। ओपन सीक्रेट, ऐसी सीक्रेट जो खुली हो। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन। क्लियरली कंफ्यूज्ड, bitter sweet, act naturally. Here Bauer literally means a pleasant steady place. Okay, this is a metaphor. Extract 2. So we are tempted on by unchanging things of beauty. Things of beauty ये enjambment का एग्जाम्पल है। जब एक लाइन आगे तक स्पिल करती है, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ तक स्पिल कर रही है, तो एंजाबमेंट इसे बोलते हैं। लाइक द सन, द मून, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, enjambment. So we are tempted on by unchanging things of beauty like the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. Actually, these lines are the example of enjambment, जिसमें रन ऑन लाइन्स होती हैं। ये लाइन यहाँ खत्म, कोई कोमा नहीं है, यहाँ तक जा रही है सेकंड लाइन तक। एंजाबमेंट इज ए पोएटिक डिवाइस इन विच ए सेंटेंस और आइडिया कंटिन्यूज फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोएट्री टू द नेक्स्ट विदाउट ए पॉज और पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द लाइन। कंटिन्यूअस होती है, रन ऑन लाइन्स बोलते हैं इसे इन पोएट्री। जैसे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो ये थॉट आगे तक स्पिल कर रहा है इस लाइन में। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर फेड। और यहाँ पे इसमें लाइनें देख रहे हैं आप, बाई अनचेंजिंग थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यहाँ नहीं आई ये लाइन, सेकंड लाइन बनी। और मून, ट्रीज, ये एग्जाम्पल ऐसे चल रहा है। वन थॉट इज गोइंग ऑन, एक लाइन बिना रुके, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के आगे बढ़ती जा रही। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाबमेंट। तो पहला क्वेश्चन है, द स्पीकर इज अ शेफर्ड, पोएट ऑब्जर्विंग नेचर, ट्रैवलर और हिस्टोरियन। ट्रैवलर नहीं है, हिस्टोरियन नहीं है, शेफर्ड नहीं है, तो बचा क्या? अ पोएट ऑब्जर्विंग नेचर। तो आगे बढ़ते हैं, एनालॉजी देखते हैं। सन के साथ लाइट जुड़ी है, ट्रीज के साथ शेड जुड़ी है। ठीक, जरूरी नहीं है सभी ट्रीज फ्रूट देते हैं। स्टेटमेंट देखिए, द पोएट सेज दैट नेचर मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स अस। ठीक है। The sheep are afraid of the shade given by trees. This is wrong. So A option is correct one. Rhyme scheme, आपको पता ही है, A, इसमें rhyme scheme है। Moon, boon, sheep, weep, कुछ इस तरह की आगे लाइन होगी। Trees old and young, figure of speech पहचाननी है। Trees old and young, old और young में क्या हो रहा है? कंट्रास्ट हो रहा है, अंतर है, एकदम कंट्रास्ट है इसमें, ओल्ड और यंग। इमेजरी तो है ही है खैर, परंतु यहाँ वो बात नहीं है, हम एलिट्रेशन भी नहीं है, कोई कंसोनेंट साउंड रिपीट नहीं हो रही। एंटीथीसिस है, दिस इज कंट्रास्ट। एंटीथीसिस, हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा के कोई बात कहना। एंटीथीसिस इज गिवन इन द अबव लाइन्स, कंट्रास्ट जिसे बोलते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स। डैफोडिल्स, रिल्स, ए दैट फॉर themselves a cooling covert make, तो ये बी होगी, आगे भी कोई बी आए। The extract is from the point of view of a nature lover. सोल्जर नहीं है, फार्मर नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है, लवर है, नेचर लवर। एनालॉजी, रिल्स और वाटर, झरने जो होते हैं उनका पानी। डैफोडिल्स का संबंध है फ्लावर्स, फ्लावर्स। स्टेटमेंट, द रिल्स क्रिएट कूल शेड अगेंस्ट द हॉट वेदर, राइट। द डैफोडिल्स सिंबलाइज सॉरो, दिस रॉन्ग। ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। राइम स्कीम, ए, राइम स्कीम चलती है इस लाइन में। फिगर ऑफ स्पीच इन कूलिंग क्वार्ट, मेटाफर है, सिमली है, पन है, पर्सनिफिकेशन है, दो तो नहीं है, सिमली भी नहीं है, क्योंकि लाइक या एज वर्ड सिमली में मिलते हैं आपको, यहाँ नहीं है, तो दिस इज मेटाफर। एंड मिड द हश ऑफ मेनी ए ड्रीम एंड मेनी लेजेंड ओल्ड वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। स्पीकर कौन है इसमें? ड्रीमर है, पोएट रिफ्लेक्टिंग ऑन हिस्ट्री। किंग नहीं है, वॉरियर नहीं है, ड्रीमर नहीं है, एक पोएट है जो हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे इमॉर्टल ड्रिंक की बात कर रहे हैं, अमृत की। एनोलॉजी, फाउंटेन, वाटर, ठीक है, रिलेटेड है आपस में। इमॉर्टल ड्रिंक किसको कहा है? ब्यूटी को कहा है। यहाँ ब्यूटी लिखोगे आप, आंसर लिखोगे, आंसर 2 पेपर में ऐसे लिखना आपको, और ये नहीं लिखना कि ए है, ए लिख दिया, ठीक है, फिर आगे लिखोगे ब्यूटी। बहुत से बच्चे जो ये मल्टीपल चॉइस के होते हैं, आंसर 2 का बी लिख दिया,
और 3 का डी लिख दिया, ये गलत है। यहाँ पे आपको वर्ड्स लिखने हैं जो आंसर के हैं, अदरवाइज एग्जामिनर इरिटेट होगा और आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे उसमें मार्क्स कटेंगे, क्योंकि वो इरिटेट हो चुका है। उसको पेपर फटाफट चेक करने होते हैं, बहुत पेपर होते हैं, और मार्किंग करना आसान काम नहीं होता, बड़ा डल सा काम होता है। इरिटेट हो गया अगर एग्जामिनर, इवेल्युएटर, तो आपके मार्किंग टाइट हो जाएगी, ये देख लेना आप। आपके पास कोई सबूत नहीं होगा और कोई चैलेंज नहीं होगा। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन का 5 नंबर का है, आपको 4 मिलेंगे तो 3.5 मिलेंगे वहाँ। ऐसा होता है, बहुत से टीचर जो इरिटेट होते हैं इस तरह से, वो ऐसा करेंगे। तो ध्यान रखना, आपको जब भी मल्टीपल चॉइस का, जैसे रीडिंग स्किल का है, उसमें आपको आंसर पूरा लिखना है। पूरा कितना होता है, एक लाइन का, एक वर्ड का होता है आमतौर पे, या एक लाइन हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, बट एग्जामिनर के लिए जितना आसान करोगे, अच्छा राइटिंग करोगे, आपके जो आंसर नंबर सही लिखे हुए, अगर ए है तो ए में ही देना है आंसर, ए ही लिखना है। ये नहीं कि ए इसको 1 बना दिया आपने, इसको 2 बना दिया। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, ए बी सी में है तो 1 2 में आंसर दे रहे हैं, वो गलत होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, द पोएट सेज लेजेंड्स एंड ड्रीम्स इंस्पायर अस, ठीक है। द माइटी डेड रेफर्स टू ऑर्डिनरी पीपल, नहीं, तो 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ऊपर वाले का ब्यूटी, इमोर्टल ड्रिंक ब्यूटी बता दिया था मैंने। राइमिंग स्कीम ए बी बी। फिगर ऑफ स्पीच फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, ये मेटाफर के रूप में ब्यूटी को ही लिया गया है, दिस इज मेटाफर। लास्ट है extract, pouring unto us from the heavens brink, such the moon, the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon, a simple for simple sheep. The stanza is narrated by a priest, no, astronomer, no, shepherd, no, nature worshipping poet. Analogy, heaven और divine एक ही चीज है, brink edge होती है, right? Statement, beauty flows continuously like a family gift. Yes, the simple sheep represents innocence. Both are correct. C answer लिखोगे, C both true. Rhyme scheme यहाँ पे different है. Look at the ending words of the poem. Brink, moon, boon, sheep. A, B, B. So answer is A, B, C, B. Figure of speech in pouring unto us. This is personification. pouring unto us, जैसे कि ह्यूमन बीइंग किसी घड़े को उड़ेल रहा हो, पानी उड़ेल रहा हो, तो दिस इज pouring, नीचे की तरफ अमृत, ऊपर से आसमान से, हेवन से कोई अमृत नीचे गिर रहा हो, ब्यूटी के शेप में धरती पे, दिस इज पर्सनिफिकेशन। ब्यूटी को ह्यूमन टर्म्स में दिखाया गया है, जैसे कि आसमान में कोई देवता हो और ब्यूटी के रूप में धरती पे अमृत बिखेर रहा हो, पोर कर रहा हो, उड़ेल रहा हो, liquid की फॉर्म में। Dear students, this is end of the extracts of A Thing of Beauty. I shall take up another poem on Jennifer's Tigers or a roadside stand some other day. Till then, have a nice day, enjoy yourself, and subscribe to my channel. Keep watching, liking, and sharing my videos with your friends. Thank you so much.